Hi students, let us start with the first chapter, real numbers, and let us see a few things which are given in this chapter. Now before we start with anything of this chapter, let us just first take up a few things which I have already done in my previous videos, but let us revise once again. Let us see a very simple division. Let us say I want to divide 9 by 2. So if I divide 9 by 2, you should know this thing that if we write 4 here, 8 will come here, and then we do the minus and we get 1 here. Now this procedure of dividing any number by another number is a very important procedure. And as I had told you in the previous video that the number over here, this number is known as the divisor. The number here, this number is known as quotient. This number here is known as, this number here is known as the remainder, and this number here is known as the dividend. Now as we know the relation, we can write 9 as, 9 can be written as 2 into 4. We can multiply these two numbers and then add this one. So we can write 9 as 2 into 4 plus 1. Now once again I am emphasizing this. You see here divisor, the top number is the quotient, then we have in the middle here dividend, and then in the end we have remainder here. There is a relation in between these numbers. As I have written here, the dividend can be written as divisor, as you can see here, divisor into quotient plus remainder. This is an important relation which you must have studied in previous classes. Let me just write down this once again here. We can see here, we can write this relation like this: dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Now the same result was given a long time back. People used to know about this relation a long time back. बहुत पहले से ये रिलेशन हमें नोन है, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस रिलेशन को एक बुक में फॉर्मली लिखा, द नेम ऑफ दैट पर्सन वॉज यूक्लिड, और उन्हीं के नाम पर हम इसे बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ओके, the same result we will write in his language and we will call that as Euclid's division lemma. अब कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि लेमा क्या होता है. लेमा इज अ रिजल्ट, प्रूवन रिजल्ट, एक ऐसा रिजल्ट जो आपने प्रूव किया और जिसे आप किसी नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करने में यूज करने वाले हैं. दैट इज नोन एज लेमा. हमारे लिए ये सिंपली एक रिजल्ट होगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. इट विल बी सिंपली अ रिजल्ट फॉर अस. जो भी उन्होंने किया था अपने काम में, उन्होंने इस यूक्लिड का जो डिवीजन लेमा है, ये जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसे उन्होंने आगे के थ्योरम्स यूज करने में प्रूव किया था, एंड देयरफॉर इट वाज नोन एज अ लेमा. लेमा इज अ रिजल्ट विच इज यूज्ड इन प्रूविंग अदर थ्योरम्स. ठीक है, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की बात यहाँ पर हो चुकी है. अब हम यहाँ पर फॉर्मली जो यूक्लिड ने हमें डिवीजन लेमा दिया है उसे हम एक बार लिखते हैं. यहाँ पर यूक्लिड ने जो हमें डिवीजन लेमा दिया है वो इस तरीके से है: a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. और जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में, मैंने आपको बताया था कि वी कैन राइट डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. ये रिजल्ट बहुत ही कॉमन रिजल्ट है, आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है. अब अगर हम कंपेयर करते हैं, if we want to compare the two things here, the one written in words and the other written in terms of a, b, q and r, so let us compare these two things. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंड की जगह पर क्या मिल रहा है हमें a, डिविजर की जगह पर हमारे पास क्या है b, quotient is denoted by q and remainder is denoted by r. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ भी नहीं है, वो सिंपली है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड की जगह पर हमें a लिखना है, डिविजर की जगह पर b लिखना है, क्वोशिएंट की जगह पर q लिखना है और रिमाइंडर की जगह पर r लिखना है.
अब यूक्लिड ने हमें जो ये रिजल्ट दिया था, ही गेव अस द रिजल्ट फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। जैसे मैंने अभी वहाँ पर पिछले बार आपको यहाँ पर डिवीजन करके दिखाया था, 9 और 2 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स थे। तो यूक्लिड ने जो हमें रिजल्ट दिया था वो उन्होंने दिया था पॉजिटिव इंटीजर्स a और b के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, we can always find 2 more integers q and r such that a is equal to bq plus r। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है a is equal to bq plus r, इसमें r रिमाइंडर है और आपको ऑलरेडी पता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया a और b क्या हैं, a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और r यहाँ पर क्या है, r रिमाइंडर है, और आपको पता है कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिविजर। जब मैंने 9 को 2 से डिवाइड किया था तो लास्ट में मेरे पास रिमाइंडर आया था 1, एंड 1 इज ऑलवेज लेस देन 2, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा इट इज ऑलवेज लेस देन द डिविजर। तो देयरफॉर वी कैन से हियर दैट r इज ऑलवेज लेस देन b एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। इसे हम एक बार देखते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है उसे हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए थ्योरम 1.1 यहाँ पर दिया हुआ है, इसे हम एक बार देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास है ये थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यहाँ पर दिया हुआ है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a is equal to bq plus r where r is less than b greater than or equal to 0। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है इसे आपको लर्न कर लेना है, और लर्न करने का टेक्निक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपको याद रखना है डिविडेंड की जगह पर आपको a लिखना है, डिवीजन की जगह पर b लिखना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर तो q और r से ऑलरेडी डिनोटेड ही है। अब ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिखाया, अगर आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक नहीं है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, परचेज कर लीजिए, जैसे भी है, बट आपको ये थोड़े से स्टेटमेंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए और अच्छे से लिखना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, जैसे मैंने आपको बताया ये रिजल्ट उन्होंने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दिया था, और हम भी इसे जब यूज़ करेंगे तो हम इसे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही यूज़ करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा रिमाइंडर इज़ लेस देन द डिविजर, वो तो ऑलवेज है ही है, वो यहाँ पर जो रिजल्ट दिया हुआ है r इज़ लेस देन b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा इंपॉर्टेंट क्यों है, एक बार देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा के हमारे पास 2 मेन एप्लीकेशंस होंगे। एक यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो एप्लीकेशन आएगा वो आएगा फाइंडिंग आउट HCF, और ये जो फाइंडिंग आउट HCF करना है, मैंने प्रीवियस जो आपको वीडियो बताया था उसमें मैंने बताया था कि HCF फाइंड आउट कैसे करते हैं। उसके मैंने आपको 2 बेसिक मेथड्स बताए थे, और एक मेथड मैंने आपको बताया था डिवीजन मेथड। तो वही डिवीजन मेथड लगाना है, बट उसको लिखेंगे थोड़ा अलग तरीके से, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से उसको लिख देंगे, तो वो HCF फाइंड आउट करने में उसका एक एप्लीकेशन है। और दूसरा एप्लीकेशन इसका आता है नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, तो वो भी नंबर कौन से फॉर्म के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, तो वो हम थोड़ा सा देख लेंगे। अभी जब प्रॉब्लम्स आएंगे हमारे पास तो हम उसमें देख लेंगे कि कैसे करना है हमें। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, आइए इसका फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, फाइंडिंग आउट HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर पहले एक जो हम लेमा अप्लाई करते हैं उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, तो सबसे पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं। व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं कि हमें कैसे उसका HCF फाइंड आउट करना है। तो स्टेप 1 जो है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C एंड D। अब अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं जिनको हमने ले लिया C और D, उसमें से एक नंबर छोटा होगा और दूसरा नंबर बड़ा होगा, ठीक है। जो भी छोटा नंबर है उसको आपको डिवीजन ले लेना है, और जो बड़ा नंबर है उसको आपको डिविडेंड ले लेना है। और बेसिक डिवीजन जैसे आप डिवीजन करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, कोई अलग चीज़ इसमें नहीं करनी है। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो इन दोनों का जो बेसिक डिवीजन है हमको वही करना है। हम यहाँ पर देखते हैं ये 12,000 की रेंज में है, ये 4,000 की रेंज में है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स यहाँ पर डिवीजन में जो क्वोशिएंट आएगा वो 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 टाइम्स डिवीजन हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हम लिखेंगे इसको
तो हम 12576 को डिवाइड करेंगे 4052 से, ये हमें करना है। और जब हम डिवीजन करेंगे यहाँ पर 3 मिलेगा हमें क्वोशेंट की प्लेस में। तो ये यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी करके दिखाया हुआ है। 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। ये 420 जो है वो यहाँ पर डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर में 420 बचेगा। तो ये वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो वही स्टेटमेंट आपको जो है यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिख देना है। ए इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर देखें, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू 12576 है, बी का वैल्यू 4052, क्यू का वैल्यू 3 और आर का वैल्यू 420। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब हम इसे अप्लाई करेंगे, हमने स्टेप 1 देख लिया कि जो भी छोटा नंबर है उसे हमें डिविजर बना देना है और जो बड़ा नंबर है उसे डिविडेंड बना देना है। और उसके बाद ये लिखना है सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ये वही है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ही है। यहाँ पर सी और डी उन्होंने अलग से लिख दिया है, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ये आप ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो नंबर्स को आप ए और बी ले सकते हैं सी और डी लेने की जगह। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है इफ़ आर इज इक्वल टू 0 देन डी इज द HCF ऑफ सी एंड डी। आपको पता है दो नंबर अगर हैं, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो कभी भी उन दोनों नंबर्स से बड़ा नहीं हो सकता है। उसमें से जो छोटा नंबर है मैक्सिमम वो उसके बराबर हो सकता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इफ़ आर इज 0 देन डी इज द HCF ऑफ सी एंड डी। तो मतलब डी जो है वो सी और डी में से छोटा नंबर जो भी होगा वो HCF हो जाएगा दोनों का। बिकॉज हमने जो छोटा नंबर है उसको हमने लिया था डिविजर, उसको हमने यहाँ पर रखा था डी की जगह पर। तो इफ़ आर इज़ 0 देन डी इज़ दी HCF ऑफ सी एंड डी। अगर आर 0 हो जाता है तो आपको आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको HCF मिल गया। इफ़ आर इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन अप्लाई द डिवीजन लेमा अगेन टू डी एंड आर। अब जो आपने प्रोसीजर पहले किया था डिवीजन मेथड में, वही प्रोसीजर आपको करना है। जो भी हमारा रिमाइंडर बच जाता था दैट विल बिकम द डिवीजर फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ये हमने देखा था डिवीजन मेथड ऑफ HCF में। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप वो भी देख सकते हैं कि डिवीजन मेथड में क्या हो रहा था। जो रिमाइंडर बचता था वो नेक्स्ट स्टेप में डिवीजर बन जाता था HCF फाइंड आउट करने के लिए। दो नंबर्स का जब हमने HCF फाइंड आउट किया था तो वहाँ पर तो यही प्रोसीजर आपको यहाँ पर रिपीट कर देना है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा प्रोसीजर है, ये इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, 4052 से हमने डिवाइड किया था। तो जब 4052 से हमने डिवाइड किया था तो यहाँ पर देखिए 4052 इंटू 3 ये हमें मिला था, 4052 इंटू 3 प्लस 420। तो अब ये 420 जो यहाँ पर डिविजर था वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा डिविजर। जो रिमाइंडर था एक स्टेप का वो नेक्स्ट स्टेप में डिविजर बन जाएगा। और जो यहाँ पर हमारा डिविजर था वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा डिविडेंड। यही होता था जो आप पहले, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं नॉर्मल मेथड से तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा बच जाता 420। और जब ये 420 रिमाइंडर बचता तो नेक्स्ट स्टेप में क्या था, 4052 यहाँ पर आ जाता, डिविडेंड की जगह पर आ जाता। तो अब डिविडेंड की जगह पर 4052 आ गया और डिविजर की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया, 420। तो वही प्रोसीजर है जो डिवीजन मेथड है HCF का, वही प्रोसीजर है, बट उसको थोड़ा सा लिखना अलग फॉर्म में है। इस फॉर्म में हम उसको लिखेंगे और यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्म है। फिर इसी तरीके से आगे हमको यही स्टेप्स रिपीट करते चले जाने हैं। अब यहाँ पर क्या है, 272 मिल गया हमें। 272 इज द रिमाइंडर हियर। तो 272 विल बिकम द डिविजर फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और जो यहाँ पर डिविडेंड था हमारा, जो यहाँ पर डिविजर था हमारा 420, दैट डिविजर विल बिकम अगेन द डिविडेंड। तो 420 को आपको 272 से डिवाइड करना होगा। ये एक बार वन टाइम इट विल गो एंड देन वी विल हैव 148 एज द रिमाइंडर। अब ये जो 148 रिमाइंडर है इसको फिर से नेक्स्ट स्टेप में आपको डिविजर बना लेना है। तो वही प्रोसीजर आप रिपीट करते चले जाएंगे अनलेस एंड अनटिल यू गेट द रिमाइंडर एज 0। आपको तब तक रिपीट करना है ये प्रोसीजर जब तक आपको रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। और एक बार आपको रिमाइंडर 0 मिल गया तो उस स्टेप में जो भी आपका डिविजर था दैट डिविजर विल बिकम दी HCF। तो यहाँ पर हमें HCF क्या मिलेगा, यहाँ पर लास्ट स्टेप में अगर हम देखते हैं तो HCF हमें 4 मिल जाएगा। Why HCF will be 4? HCF will be 4 because in the last step the divisor is 4। तो यहाँ पर हमें HCF 4 मिल जाएगा। आइए इसका एक सम देखते हैं। यहाँ पर जो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंडिंग आउट द HCF ऑफ 135 एंड 225 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब वो कुछ स्टेप्स हैं जो आप पर्टिकुलर स्टेप्स लेते हैं, दैट इज नोन एज एल्गोरिथम। जो भी आपने स्टेप्स लिखे हैं 1 2 3 दैट इज द डिवीजन एल्गोरिथम। लेमा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी लिख सकते हैं वहाँ पर। तो 135 और 225 ये दोनों नंबर्स हैं, इनका यहाँ पर हमें HCF फाइंड आउट करना है, 135 और 225। अब हमें यूज़ करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा रफ वर्क कर लें यहाँ पर। और रफ वर्क में आपको वही प्रोसीजर करना है जो आपने पहले डिवीजन मेथड में किया था। जो भी बड़ा नंबर हमारे पास होगा उसको हम छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 225 को आपको किससे डिवाइड करना है? 135 से डिवाइड करना है। अब हमें पता है कि ये 200 की रेंज का है, ये 100 की रेंज का है, लेकिन यहाँ पर ये 135 है, 35 ज़्यादा है, 25 कम है, तो ये 2 बार नहीं जा सकता है, ये केवल एक ही बार जाएगा। इट विल गो ओनली वंस, सो देयरफॉर वी विल राइट 135 इंटू 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 135, माइनस कर देंगे। जब आप इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 90। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से डिविडेंड, तो यहाँ पर डिविडेंड क्या है हमारा 225 इज इक्वल टू डिविजर। डिविजर क्या है हमारा 135। तो यहाँ पर सॉरी ये डिविजर लिख दिया मैंने, इसकी जगह पर मुझे 135 लिखना है। डिविजर जो भी वैल्यू है वो लिखूँगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख लिया है डिविडेंड, फिर हमने यहाँ पर लिख लिया है डिविजर इंटू कोशेंट। कोशेंट क्या है यहाँ पर? कोशेंट इज़ 1, 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हियर इज 90। हमने वही लिखा है यहाँ पर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता तो 135 विल बिकम द HCF, बट दैट इज नॉट द केस हियर। तो आपको क्या करना है, फिर से नेक्स्ट स्टेप में आपको जाना है। अब अगर आप डिवीजन मेथड देखते तो डिवीजन मेथड में क्या होता था, आपको फिर से 135 को डिवाइड करना पड़ता था 90 से। तो वही प्रोसीजर यहाँ पर हम रिपीट करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, 135 को आपको बना देना है डिविडेंड, 90 को बना देना है आपको डिविजर, और आपको पता है कि इट विल गो ओनली वंस, सो देयरफॉर वी विल राइट 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। जो रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा वो 45 बचेगा। तो वही प्रोसीजर आप यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1, यहाँ पर आपने लिखा 90 लिखने के बाद यहाँ पर बच गया 45, और 45 बचने के बाद आपको पता है डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग फिर से क्या होगा, ये 90 जो है वो फिर से यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर से आपको वही कर देना है। यहाँ पर जो एक स्टेप में हमारा यहाँ पर रिमाइंडर होता है वो दूसरे स्टेप में हमारा बन जाता है डिविजर। ये आपको बिल्कुल दिखना चाहिए। डिवीजन मेथड से आपको ये चीज़ बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि जो एक स्टेप में रिमाइंडर है वो नेक्स्ट स्टेप में डिविजर बन जाएगा। और आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि भाई जो पहले डिविजर था वो अब बन जाएगा डिविडेंड। तो यहाँ पर जैसे अगर हम देखने जाते हैं इस स्टेप में, यहाँ पर हमारे पास जो डिविजर था वो 90 था, तो नेक्स्ट स्टेप में वो डिविजर क्या बन जाएगा, वो डिविडेंड बन जाएगा। तो डिविडेंड की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 90। तो 90 इज इक्वल टू 45। अब थोड़ा सा आपका अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो ठीक है, नहीं अच्छा है तो वही मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये 2 टाइम्स आता है। 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब जैसे ही हमें 0 मिला, यहाँ पर मैंने आपको बताया था जैसे ही हमें 0 मिलेगा, जैसे ही हमें 0 मिला उस स्टेप में जो भी हमारा डिविजर था दैट डिविजर विल बिकम द HCF। तो हमारे पास यहाँ पर HCF हमें क्या मिल गया, HCF विल बिकम 45। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। मैंने आपको समझा दिया है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। फिर मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करके आप HCF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो आप बिल्कुल डिवीजन करके देख सकते हैं। आपको नहीं आता है आप डिवीजन करके देखिए। यहाँ जो रफ वर्क है मैंने आपको बताया, आप रफ वर्क में बिल्कुल डिवीजन करके देख सकते हैं। लेकिन जो आप स्टेप्स लिखेंगे, दोज स्टेप्स मस्ट बी रिटन इन दिस फॉर्म। जो मैंने आपको बताया अभी कैसे लिखना है, आपको डिविडेंड
इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आपको इसी फॉर्म में लिखना है, ये कुछ नहीं है, यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है बस। और अगर आपको HCF फाइंड आउट करने के लिए आता है इस तरीके से कुछ भी, तो आप इस प्रोसीजर को यूज़ करके HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू, होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर